Hello and welcome. Welcome to learning session number 4 of chapter number 9 of Science 1, which is carbon compounds. Okay, so far what all have we seen? We have seen ionic bonds and covalent bonds. What are ionic bonds? Bonds in which there is a permanent transfer of an electron from one atom to another atom. That is called as an ionic bond. And in ionic bonds, ions are formed. That's why it is called as an ionic bond. In covalent bond, instead of permanent transfer of an electron, the two atoms are going to share the electrons amongst themselves so that they can complete their duplet and octet. Okay, उनका last orbit या तो completely filled होना चाहिए या फिर completely empty होना चाहिए. That's the rule. Next, we had seen dot structure and line structure. What is dot structure? It's a way of showing how the atoms are bonding with each other, in which electrons are shown using dots. Okay, either they are shown using dots और समटाइम दे शोन यूजिंग क्रॉसेस. एक एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाएंगे, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से दिखाएंगे. सो दैट्स डॉट स्ट्रक्चर. एंड इन लाइन स्ट्रक्चर, इंस्टेड ऑफ शोइंग इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट्स, there are two atoms and there is one electron of each atom sharing their electrons with each other. So instead of showing those two electrons by dots and crosses, they are just going to draw a line between them. So दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया. उसका मतलब है दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे दोनों एटम्स. ओके, सो दैट इज line structure. Then we had seen catenation. What is catenation? It is the ability of carbon atom to make stable covalent bonds with itself, खुद के साथ, and with other elements. So because of that, carbon can have very long molecules because it can connect with itself. It can make stable bonds, stable covalent bonds with itself, खुद के साथ, and बहुत अलग अलग with also with different elements. That is catenation. Isomerism. So isomerism it is a property of a few molecules where the chemical formula or the molecular formula is the same but the structural formula is different. Okay, so दोनों में number of carbon atoms, number of hydrogen atoms same होंगे but दोनों का structure अलग अलग होगा. Okay, and because of the different structure the properties will be different. And because इतना ज्यादा variety है structure में कि तुम लोग अलग अलग वे में कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज कर सकते हो. दैट्स अनदर रीजन व्हाई यू फाइंड सो मेनी different compounds of carbon atom. Okay, then we had seen hydrocarbons and its types. So hydrocarbons were of three important types, three major types. what are hydrocarbons? जिसमें से दो एलिमेंट्स, ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो तीन टाइप्स देखे थे हम लोग ने, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस. एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एल्कीन्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. एंड alkene and alkyne जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, those are also called as unsaturated hydrocarbons. That we had seen. And finally we had seen carbon compounds based on arrangement of carbon atom. Okay, so what are the three arrangements of carbon atoms? एक possibility है कि कार्बन खुद का एक लंबा सा चेन बना लेगा, so that is called as straight chain carbon compound. Next, straight chain के बीच बीच में कहीं कहीं से branches बन रहे हैं, so that will called as branched chain. It's still a chain, okay, but chain के बीच बीच में थोड़े branches निकल रहे हैं. It's a branched chain carbon compound. And lastly, वो जो चेन है वो एक लंबा सा चेन बनाने के बजाय वो एक सर्कल फॉर्म कर लेगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा कार्बन से. तो whenever they are closing a loop, एक सर्कल बना रहे कार्बन के atoms, you will call them as cyclic carbon compounds, right? So all this we have seen so far. Today we are going to look at functional groups in carbon compounds, and we are going to see homologous series. Okay, how do you pronounce this? Homologous. Okay, HO is ho, MO is mo, LO is lo, GOUS is gus. Homologous. Okay, homologous series. Our objective for today will be students will be able to recall functional groups in carbon compounds. This is not functions, okay, this is functional. यहाँ पे एक typing mistake हो गया, functional. So students will be able to recall functional groups in carbon compound. What is the meaning of recall? याद हो जाना चाहिए. At the end of this learning session, जितने भी functional groups हम लोग study करने वाले, you should be able to by heart them. You should be able to tell me कि अगर मैं तुम लोग को एक functional group का नाम दे दूं, उसका structure कैसे दिखेगा. Okay. So by the end of the learning session, it should be by heart. Finally, students will be able to draw homologous series of various functional groups. Okay. So because you have to draw many things today, make sure you have your textbook ready, make sure you have your notebook ready, make sure you have your pen ready, because you have to draw many things today in the learning session. And I'm going to ask you to try it first, and then we are going to discuss the correct drawing, right? So when you submit the notes or when you're making the notes,
इफ आई डोंट सी मेनी कैंसिलेशंस, उससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग ने खुद से ट्राई नहीं किया। एंड व्हेन यू डोंट ट्राई बाय योरसेल्फ, तुम लोग का बुक में कोई कैंसिलेशन नहीं है, सब कुछ एकदम नीटली लिखा है, इसका मतलब है तुम लोग ने खुद से ट्राई नहीं किया, सीधा सीधा कॉपी कर दिया। एंड इफ यू कॉपी, इट्स गोइंग टू बी क्विकर, बहुत फास्ट हो जाएगा तुम लोग का काम, बट यू वोंट बी एबल टू कैच योर मिस्टेक्स, कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, वो तुम लोग पकड़ नहीं पाओगे, एंड यू वोंट बी एबल टू improve. So make sure whenever I ask you to draw a few things, try something by yourself, do try it by yourself, and only then check the correct answer in the further video. Okay, great. So I quickly wanted to revise this particular table. I know we had discussed this in detail in the last learning session, but I just want to revise it again because it is a very important table for this particular chapter. Okay, it is mandatory that you by heart this particular table to understand the remaining chapter very well. Okay, so here you can see alkanes जिसमें सिर्फ single bonds होते हैं. Here you can see alkenes जिसमें double bond होता है, at least one double bond will be there. Alkynes जिसमें there will be at least one triple bond. Okay, and here what can you learn from this table? You can learn how to tell the names of each and every compounds. Okay, say for example I ask you what is the name of the compound C4H8. तो C4H8, right, उसका left side का नाम या फिर first half of the night first half of the name will you will find on the left hand side, bute, right. C4H8 का लेफ्ट साइड में ब्यूट लिखा है एंड उसके ऊपर एंडिंग में इन लिखा है. ओके, सो इसका नाम क्या है? ब्यूटीन. ओके, ब्यूटीन. So that's the name of C4H8, butene. So first half of the name is given in this column and the second half of the name is given in this row. एन या तो एंड में एन होगा या तो एंड में इन होगा या तो एंड में आइन होगा. ओके, और ये जो फर्स्ट हाफ है वो किससे डिसाइड होता है? फर्स्ट हाफ ऑफ द नेम, उसमें कितने कार्बन एटम्स है. अगर एक कार्बन एटम होगा तो नाम मेथ से स्टार्ट होगा, अगर दो कार्बन एटम्स होंगे नाम एथ से स्टार्ट होगा, तीन कार्बन एटम होंगे नाम प्रॉप से स्टार्ट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So it is very important for you to by heart this table. Another advantage of by hearting this table is if I ask you what is the chemical or what is the molecular formula for heptine. Okay, so what is hept यानी यहाँ पे है hept and ain. Ain कहाँ पे? यहाँ पे. So heptine के रो में चले जाओ और ain के कॉलम पे आ जाओ, तो यहाँ पे आ गए. So उसका chemical या molecular formula है C7H12. So you can tell molecular formula from the name or from the name you can tell the molecular formula. Another way of doing this is heptine का मैंने तुम लोग को molecular formula पूछा, right? You can also by heart these formulas. Okay, hept यानी 7 electrons 7 carbon atoms होंगे, hept यानी 7. So hept यानी 7 carbon atoms होंगे. So यहाँ पे तुम्हें and ain बोला, right? So alkyne का क्या formula है? CnH2n-2. So अभी n के यहाँ पे तुम लोग 7 input करोगे, right? So C7H2n. तो 2 into 7 is 14, 14 minus 2 is 12. तो C7H12. तो यहाँ पे भी हमें सेम ही आता C7H12. So that is how you can tell the molecular formula from the name. Okay, so you can either by heart this table, which you anyway have to, or you can just to do it quickly you can by heart these formulas. Okay, is there something I'm missing? Let me check. No, I think we are done. Okay, so just make sure that you have by hearted this entire table very well. Okay, it will help you a lot in the remaining chapter. And right now the names of the molecules are very easy and simple. Okay, now even in the today's learning session you will see now the names will start getting complicated. अब तक सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स देखे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, तो इतना वैरायटी मिल गया हमें. अभी जैसे हम लोग और एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे तो और ज्यादा वैरायटी मिलेगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और थोड़ा डिफिकल्ट होने वाले. सो तुम लोग का बेस काफी अच्छा होना चाहिए एंड योर बेस इज दिस. ओके, एंड हाउ डू राइट दिस एंटायर टेबल? ऊपर कोई भी एक रो में से नीचे वाले रो में जाने के लिए यू हैव टू ऐड 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम. सो कार्बन एटम 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, तो एक एक कार्बन एटम्स ऐड हो रहे और हाइड्रोजन एटम्स हमें तो हमेशा दो दो ऐड होते जाएंगे. ओके, सो 6 का 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 8 plus 2 10, 10 plus 2 14, sorry 10 plus 2 12, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16. So हमेशा जैसे टॉप से नीचे जाओगे एक कार्बन एटम ऐड होगा और दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे. Okay, so that is another trick to remember this entire table. Okay, we're going to move ahead. We spent a lot of time revising this table. Functional groups in carbon compounds. Okay,
Till now you have learnt about hydrocarbon compounds formed by combination of the elements carbon and hydrogen. अब तक जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे हैं, जितने भी कंपाउंड्स देखे, उसमें से दो एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन एंड कार्बन. Many more types of carbon compounds are formed by formation of bonds of carbon with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. Okay. So carbon सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है ऐसा तो नहीं है. कार्बन can make bonds with oxygen, it can make bonds with nitrogen, it can make bonds with sulfur, it can also make bonds with halogens. What is halogens? Halogens यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों को साथ में हैलोजन बोल देते हैं. ओके. सो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी कार्बन कैन मेक कंपाउंड्स. The atoms of these elements substitute one or more hydrogen atoms in the hydrocarbon chain, and thereby tetravalency of carbon is satisfied. Again, what is tetravalency? Tetra means 4. Valency means how many electrons it wants, or it wants to add, or it wants to give away to complete its octet, its last orbit. Okay, so carbon को 4 extra electrons मिलने चाहिए. That's the rule. Okay, that rule cannot be broken. अगर उसको 4 electrons नहीं मिल रहा है, then it is not going to form that molecule, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा. ओके. सो क्या होगा, ये जो दूसरे एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट यानी एक हाइड्रोजन निकाल दो, बाकी दूसरा चीज लगा दो. ओके. सो द वे आई लाइक टू imagine this is, or I like to think about it is, think of hydrocarbons as pizza. Okay, think of carbon compounds as pizza. So उसमें बेसिक क्या होता है? बेसिक पिज्जा में क्या होता है? उसका बेस होता है, उसका सॉस होता है और उसका चीज होता है. ये तीन तो हर पिज्जा में होता है, राइट? बेस, सॉस एंड चीज. सिमिलरली कार्बन कंपाउंड्स में दो चीजें जनरली होती है, एक तो है कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन. जनरली दीज टू विल डेफिनेटली बी देयर. ओके. अभी एक बार तुम लोग ने बेसिक पिज्जा बना लिया, बेस, सॉस एंड द चीज. नाउ यू कैन पुट डिफरेंट टॉपिंग्स, राइट? तुम लोग टॉपिंग्स में चिकन डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, फिश डाल सकते हो, टोमेटो, कॉर्न, कैप्सिकम, सो मेनी डिफरेंट टॉपिंग्स यू कैन पुट. एंड जो अलग अलग टॉपिंग्स तुम लोग पुट करोगे, वैसे तुम्हें अलग अलग फ्लेवर का पिज्जा मिलेगा. सिमिलरली तुम लोग का बेसिक जो कार्बन कंपाउंड है, दैट इज योर हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे जो हम लोग ने देखे. ओके. ये तुम लोग का पिज्जा का बेस, सॉस और चीज है. ओके. ये बेसिक है. अभी इसके ऊपर तुम लोग अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करते जाओगे तो तुम्हें अलग अलग फ्लेवर मिलते जाएगा. ओके. सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट. बस एक ही रूल है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, बिकॉज इट इज टेट्रावैलेंट, राइट? उसका वैलेंसी 4 है. ओके. सो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. Okay, before we look at some examples, the atom of the element which is substituting for hydrogen is referred to as heteroatom. Okay, हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट डालने वाले हैं. सो जो दूसरा एलिमेंट डाल रहे हैं, जो दूसरा एटम डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हेटेरोएटम. ओके. Sometimes heteroatoms are not alone but exist in the form of certain groups of atoms. So ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन डाल दिया, फिर हाइड्रोजन को निकाल के सल्फर डाल दिया. कभी कभी हाइड्रोजन को निकाल के ग्रुप ऑफ एटम्स साथ में डाल देंगे. Okay, that can also happen. The compound acquires specific chemical properties due to these heteroatoms. अभी पिज्जा में अगर तुम लोग ने चिकन डाला, बेस जो तुम लोग का बेसिक पिज्जा है वो तो सेम है, बेस, सॉस एंड चीज. उस पे अगर तुम लोग चिकन डालोगे तो एक अलग टेस्ट आएगा, उस पे अगर तुम लोग फिश डालोगे तो एक अलग टेस्ट आएगा, पनीर डालोगे अलग टेस्ट आएगा, कैप्सिकम, टोमेटो, कॉर्न डालोगे तो एक अलग फील आएगा, अलग टेस्ट मिलने वाला है. सिमिलरली कार्बन कंपाउंड्स में भी व्हेन यू पुट हेटेरोएटम्स, हाइड्रोजन को निकाल के एक हेटेरोएटम डाल दिया तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज उस हेटेरोएटम के बराबर होने वाले हैं. बिकॉज ऑफ द न्यू एटम व्हिच इज बीइंग एडेड, न्यू हेटेरोएटम, द केमिकल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू चेंज. ओके. और उसका फंक्शन चेंज होने वाला है. नया एटम आ गया, नया एलिमेंट आ गया, तो प्रॉपर्टीज चेंज होने वाले हैं. प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, इसलिए उसका फंक्शन अलग हो जाएगा. दैट्स व्हाई जो ग्रुप्स होते हैं उसको फंक्शनल ग्रुप्स भी बोलते हैं. ओके. ये जो हेटेरोएटम्स है, उन हेटेरोएटम्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं. ओके. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द टॉपिक एज फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स यानी एक हेटेरोएटम, फिर ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स, एक हाइड्रोजन एटम निकाल के एक नया चीज आने वाला है उसके यहाँ पे. ओके. सो this is the list of functional group which you need to memorize. Okay, ये table absolutely you need to memorize. Again I'm telling you, जो पिछला वाला टेबल था और ये वाला टेबल, ये दोनों टेबल्स तुम लोग ने बाय हार्ट नहीं किए, it is going to be very difficult for you to understand the remaining learning session and the remaining chapter. Okay, so make sure you're absolutely by hearting this particular table. Is the most important table of this particular chapter. Okay. सो हेटेरोएटम समझो हैलोजन है. हैलोजन के 3 ऑप्शंस होते हैं,
क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है, या फिर हेटेरो एटम तुम लोग का ऑक्सीजन है, या फिर हेटेरो एटम तुम्हारा नाइट्रोजन भी हो सकता है। ये सब क्या है, हेटेरो एटम मतलब एक हाइड्रोजन निकाल के हम लोग ये सब एटम्स डालने वाले हैं। ओके, तो उसमें भी काफी वैरायटी है। ओके, हैलोजन में यू कैन पुट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन में यू कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर। एंड नाइट्रोजन का जो नाम है वो है एमाइन। ओके, अमाइन। एंड इफ यू सी यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे सब लाइन स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे जो लाइन है दैट इज वन कोवैलेंट बॉन्ड। सो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स के यहाँ पे तुम लोग या तो क्लोरीन डालो, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है। ओके, so these are the different groups of atom which you can attach to the basic hydrocarbon. Okay, तो ये तुम लोग का पिज्जा का टॉपिंग्स है। मैंने जो एल्कीन एल्कीन एल्काइन वाला जो टेबल दिखाया था वो तुम लोग का पिज्जा का बेस, सॉस और चीज है, और ये तुम लोग का पिज्जा का टॉपिंग्स है। ओके, ये अलग अलग टॉपिंग्स डाल के अलग अलग फ्लेवर मिल जाएंगे। ओके, सो आई वुड से अभी के अभी पॉज करके अभी के अभी बाय हार्ट कर लो क्या नाम है। दीज टू हैव टू बी बाय हार्टेड। ओके, इसको तुम लोग छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। ये जो दो टेबल है, ये जो दो कॉलम्स है, इनको बाय हार्ट करना है, मिडिल टू कॉलम्स। ओके, सो मेक श्योर बाय हार्टिंग नाउ इटसेल्फ, बाद में के लिए, बात के लिए छोड़ो मत, एग्जाम के पहले बाय हार्ट करना शुरू मत करो, अभी के अभी बाय हार्ट करो। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। ओके, सो सी हियर यू हैव इथेन। इथेन का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, C2H6। ओके, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। सो टोटल 6 हाइड्रोजन एंड 2 carbon atoms we have here. So we have ethane over there. Now what I'm going to do is ethane के जगह पे अभी यहाँ पे ये जो ethane है, इसका ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसको निकाल के मैंने अगर समझो यहाँ पे क्लोरीन एटम डाल दिया। So if you see यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल के एक हैलोजन डाल दिया। कौन सा हैलोजन, क्लोरीन। सो मुझे क्या मिल गया, क्लोरोइथेन मिल गया। ओके, सिमिलरली अभी ये हाइड्रोजन को निकाल के मैंने OH डाल दिया। OH इज नोन एज अल्कोहल। ओके, सो ये इथेन का इथेनॉल बन गया, NOL, नॉल, इथेनॉल। सिमिलरली यहाँ पे एक H एटम निकाल के मैंने CHO डाल दिया। ओके, यहाँ पे कार्बन एटम इज अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स राइट एंड वन ऑक्सीजन एटम एट अबव इट। ओके, सो जस्ट चेक, कार्बन को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट साइड से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो टोटल 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको। सो कार्बन इज हैप्पी। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कभी भी कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। कार्बन को हमेशा कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, हाइड्रोजन को हमेशा 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, नाइट्रोजन को हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, ऑक्सीजन को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। सब अलग अलग क्यों है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑक्टेट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करते हैं उसको कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। ओके, सो वी हैड सीन इथेनॉल, H के जगह पे OH डाल दिया। नेक्स्ट वी हैड सीन एल्डिहाइड। ओके, सो ये CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, यू हैड सीन इन द लास्ट टेबल राइट। एल्डिहाइड कहाँ पे, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो CHO राइट। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया इस हाइड्रोजन एटम की जगह पे, सो ये बन गया इथेनॉल। OH डाला, अल्कोहल डाला तो इथेनॉल बन गया, OL। एल्डिहाइड डाल दिया तो नाल बन गया, NaL, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आई टुक दिस हाइड्रोजन आउट और उसके पे NH2 डाल दिया, so NH2 is known as amine. Okay, again let me go back, here you can see amine, NH2. so NH2 मैंने डाल दिया तो ऐसे दिख गया, this will now be called as ethanamine. Okay, ethanamine. एंड फाइनली नीचे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम निकाल के कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दिया, सो दिस बिकम्स इथेनोइक एसिड. ओके, लेट मी, या सो नाउ यू कैन सी दैट नीचे इथेनोइक एसिड बन गया. सो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन एटम को निकाल के कभी हैलोजन डाल रहे हैं, कभी अल्कोहल डाल रहे हैं, कभी एल्डिहाइड डाल रहे हैं, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड डाल रहे हैं, कभी एमाइन डाल रहे हैं, और यहाँ पे अभी तक मैंने पूरा टेबल कवर भी नहीं किया. सो नाउ यू कैन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कितने अलग अलग तुम्हें वैरायटीज मिल सकते हैं. ओके, एक हाइड्रोजन एटम निकाल के दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स डाल दो तो कितना अलग अलग वैरायटी मिल रहा है हम लोग को, और ये सब सिर्फ इथेन से निकला है. सो ऐसे ही मीथेन से निकलेंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इन सब में से इतनी अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी. so, कितने सारे ऑप्शंस है कार्बन कंपाउंड्स में. ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, बिकॉज ऑफ आइसोमरिज्म. ओके, ग्रेट. Next we are going to start looking at homologous series. Okay, so before we actually start looking at this statement, what is the meaning of homo? Homo एक बहुत बार आएगा, homo. So homo means same.
Okay, homo means same. So what is homologous series? They are large number of compounds having the same functional group but different length of carbon chain. Okay, what is homologous series? It is a set of compounds. उन compounds में क्या सेम होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप सेम होने वाला है. क्या अलग होने वाला है? कितना लंबा कार्बन चेन है? That is going to be different. So these are called as homologous series. So one homologous series we have already seen so many times is of alkanes. Okay, methane, ethane, propane, butane, pentane. तो सब में क्या है? फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं. ओके, ये बेसिक तुम लोग का पिज्जा है. बेसिक पिज्जा में बेस, टॉपिंग, सॉरी बेस, सॉस एंड चीज. ओके, कोई भी टॉपिंग अभी तक ऐड नहीं किया, एकदम सादा पिज्जा. तो सादा पिज्जा तुम लोग का एल्कीन एल्कीन एल्काइन होता है. ओके, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट क्या चेंज हो रहा है? कितना लंबा कार्बन चेन है. यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन, यहाँ पे चार कार्बन, यहाँ पे पांच कार्बन, बाकी सब सेम है. ओके, another example of homologous series is aldehydes. Okay, if you add CHO you get aldehyde, right? So ये methanol हो गया. Similarly यहाँ पे भी aldehyde है, ethanol हो गया, यहाँ पे भी aldehyde है, pentanol हो गया, यहाँ पे भी aldehyde है, butanol, aldehyde, pentanol. Okay, this is not pentanol, मैंने इसको pentanol बोला शायद. This is propanol. Okay, so if you see what is same in all of these, इन सब में aldehyde है. ये सेम चीज है इन सब के बारे में. इन सब में क्या अलग है? इनमें अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. यहाँ पे दो कार्बन एटम, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छह. सो इट हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप बट द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट. सो इट इज कॉल्ड एज अ होमोलॉगस सीरीज. इन सब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. तो दिस इज अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स. ओके, इज इट मेकिंग सेंस नाउ? यस. ओके, so we have seen homologous series. What is the definition of homologous series? It is the series of compounds formed by joining the same functional group. एक compound का series है जिसमें functional group same है in the place of particular hydrogen atom. Okay, एक hydrogen atom को निकाल के वो functional group हमेशा डाला है on the chains having sequentially increasing length of homologous is called homologous series. Okay, sequentially increasing यानी हमेशा सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है. हमेशा एक एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है उस चेन में, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज. ओके, so now there are these tables given in your textbook. So let us first see what is this table telling us. So this is the table for homologous series of alkanes, right? Homologous series of alkanes. तो यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक दे दिया. एंड वी हैव सीन एल्केन्स इन लॉट ऑफ डिटेल टिल नाउ. अभी यहाँ पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ऐसा क्यों लिखा है ये लोग ने? ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी पता चल जाए और बहुत लंबा लंबा मॉलिक्यूल्स भी ना बनाना पड़े, इसलिए वो लोग ने कंडेंस यानी शॉर्ट में. ओके, नाउ here there are two columns. One column is number of carbon atoms. यहाँ पे तो एक ही कार्बन है तो यहाँ पे 1 लिख दिया. यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 2 लिख दिया. यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 3 लिख दिया. So this column is very easy. Okay, what is this? Number of CH2 units. Number of CH2 units मतलब क्या होता है? So that for that you'll have to draw methane. Okay, so methane को पहले draw कर लेते हैं. So this is how methane looks like. भी इसमें CH2 units ढूंढने हैं. कितने? CH2. So यहाँ पे CH2 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, राइट? So this is one CH2 unit. तो इसमें कितने CH2 unit है? इसमें एक CH2 unit है. Similarly ethane. Ethane we have seen its structural formula. How does ethane look like? This is how ethane looks like. भी इसमें कितने CH2 के units है? यहाँ पे एक दिख रहा है और यहाँ पे भी एक unit दिख रहा है CH2. तो यहाँ पे दो CH2 के units है. Finally let us try propane now. Propane का again we know the structure. This is how propane looks like. यहाँ पे कितने CH2 के यूनिट्स है? यहाँ पे 1 2 3 CH2 के यूनिट्स, राइट? सो 3 CH2 के यूनिट्स, तो यहाँ पे 3 आ गया. सिमिलरली यू हैव टू डू दिस फॉर द रिमेनिंग 3. ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के लिए कर दो. ओके, सो विदाउट ड्रॉइंग आई विल डू इट वन फॉर यू ऑल. ओके, सो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स आ जाएंगे. यहाँ पे CH2 यूनिट 4 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे CH3 लिखा है, बट वो CH3 के अंदर CH2 होता है, राइट? इस CH3 के अंदर एक CH2 होता है. इफ यू लेट मी गो बैक, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है? CH3, राइट? यहाँ पे लेफ्ट में जो CH3 है, यहाँ पे CH3 लिखा है. यहाँ पे बीच में जो CH2 है, यहाँ पे CH2 लिख दिया. राइट साइड में जो CH3 है, दैट दे हैव रिटन ओवर हियर. सो CH3 के अंदर ही एक CH2 होता है. ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो CH3 है, उसके अंदर एक CH2 होता है. सिमिलरली राइट साइड में जो CH3 है, उसके अंदर एक CH2 होता है. ओके, सो कार्बन एटम्स 4 है,
तो यहाँ पे इस CH3 के अंदर एक CH2 का यूनिट होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। सिमिलरली यहाँ पे CH3 की यूनिट के अंदर एक CH2 का यूनिट होगा, तो 4 हो गए। There are 4 CH2 units. If it's confusing, draw the structural formula of butane. हम लोग ने ऑलरेडी बहुत बार ड्रॉ किया उसमें, फिर बाद में मार्क करो CH2 के कितने यूनिट्स है। सिमिलरली फॉर पेंटेन यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है और यहाँ पे 5 CH2 यूनिट्स है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3 लिखा है, फिर भी हम लोग उसको CH2 कंसिडर करेंगे। CH3 वाले के अंदर CH2 होता है। ओके, एंड सिमिलरली लास्ट वाले में there will be 6. Okay, you must have seen the pattern by now. Okay, and make sure you're copying this in your textbook. ये पूरा पूरा टेबल वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने टेक्स्ट बुक में ये आंसर्स कॉपी कर लेना। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक यू ऑल टू सॉल्व दिस वन। ये खुद से सॉल्व कर लो। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू fill these 4 boxes. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to do that. Okay, I hope you have filled these 2 boxes. Again, वेरी सिंपल, यहाँ पे CH3 के अंदर एक CH2 होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे एक कार्बन एटम है तो 1। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे दे हैव रिटन 2। इस CH3 के अंदर एक CH2 का यूनिट होगा और इस CH2 के को सेकेंड यूनिट विल काउंट। ओके, सो 1 + 1 2 हो गया। OH है, OH के अंदर तो कोई CH2 नहीं होगा, राइट, तो उसको हम लोग नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली here there are 3 carbon atoms and 3 CH2 units. Similarly यहाँ पे there are 4 carbon atoms and 4 CH2 units. इस OH को हम लोग नहीं गिन पाएंगे कि उसके अंदर CH2 नहीं मिलेगा। Okay, so just check whether you have written the answers correctly. We are going to move ahead. Last table given in your textbook is homologous series of alkenes. Okay, यहाँ पे पहला alkanes था, सेकेंड alcohols का था, अभी ये तीसरा alkenes का है। Okay, यहाँ पे 0 बोला है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो यहाँ पे 0 क्यों बोला है, राइट? यहाँ पे CH2 चाहिए हमें, राइट? तो यहाँ पे भी एक CH2 है, यहाँ पे भी एक CH2 है, तो यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? फॉर दैट अगेन you need to draw the structural formula. So this is the diagram of ethene, right? This is how ethene looks like. यहाँ पे C and C के बीच में there will be a double bond. ethene है, right? इन में there is a double bond and the 2 hydrogen is here, are here, and 2 hydrogens are here. So number of carbon atoms is very easy. 1 carbon atom, second carbon atom. So यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे CH2 है and यहाँ पे भी CH2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, right? Why have they written 0? The answer is when they write CH2 units, left side में देखो there is a single bond and right side में भी एक single bond है, but यहाँ पे इस CH2 के right side में single bond है क्या? नहीं, right side में एक double bond है। Similarly इस CH2 के left side में single bond है, double bond है, double bond है, so you cannot consider these two as your CH2 यूनिट। ओके, ये CH2 यूनिट को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। वेरएज यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है यू कैन नॉट काउंट इट एज CH2 यूनिट। ओके, सो यहाँ पे इसमें 0 CH2 यूनिट्स है क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे इस CH2 यूनिट के राइट साइड में एक डबल बॉन्ड आ गया और इस CH2 के यूनिट में लेफ्ट साइड में एक डबल बॉन्ड आ गया। ओके, नेक्स्ट propene. How does the formula for propene look like? This is the formula for propene. Number of carbon atoms is very simple. Okay, 1 2 3, so 3 carbon atoms है। CH2 unit, so 1 CH2 unit you can see here, यहाँ पे एक CH2 unit है, लेफ्ट साइड पे एक सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं एक। बट ये जो सेकंड है, यहाँ पे भी एक CH2 दिख रहा है, राइट, बट इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट साइड में कोई भी बॉन्ड नहीं है। So left side में डबल बॉन्ड, राइट साइड में कोई बॉन्ड नहीं है, so you cannot count it as CH2 unit. Okay, लेफ्ट साइड में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, राइट साइड में एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड, so you will count this one as 1 CH2 unit and this one you won't count. Okay, now again I want you all to try and do this by yourself. ये खुद से solve करने की कोशिश करो। Okay, I'll wait for 5 seconds for you to fill these 4 boxes. Pause the video here, fill those boxes and then come back. Okay, I hope you have filled those boxes. Next is butene, right? यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, we'll see in the next learning session. For now just let's just call it butene. Okay, so CH3 के अंदर एक CH2 यूनिट होगा, यहाँ पे भी एक CH2 यूनिट है, लेफ्ट साइड में एक सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH है तो इसको CH2 काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे CH2 है बट लेफ्ट साइड में एक डबल बॉन्ड आ गया, सो यू वोंट बी एबल टू काउंट दैट एज वेल। तो यहाँ पे सिर्फ 2 CH2 यूनिट्स है
and number of carbon atoms is simple 1 2 3 4 4 carbon atoms. Similarly नीचे भी कितने कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 पेंट से चालू हुआ राइट पेंट यानी 5 कार्बन एटम्स होंगे सो हियर यू विल हैव 5 हाउ मेनी CH2 यूनिट्स यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे CH2 नहीं है सिर्फ CH है और राइट साइड में CH2 है बट लेफ्ट में डबल बॉन्ड है हमें लेफ्ट में सिंगल बॉन्ड चाहिए सो देयर विल बी 3 राइट यहाँ पे जो 3 CH2 यूनिट्स है वो और 5 कार्बन एटम्स है यहाँ पे ओके नाउ व्हाई डिड वी डू दिस ये एक्सरसाइज हम लोग ने क्यों किया ये CH2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है CH2 कितने हैं सब में ये जान के हमें क्या मिला ओके सो लेट अस सी द ऑब्जर्वेशंस नाउ So the first observation was in any homologous series while going in an increasing order of length of carbon chain कि कोई भी homologous series में जैसे तुम कार्बन एटम्स कितने हैं वो एक एक बढ़ाते जाते हो every time one methylene unit is added okay इसको क्या बोलते हैं CH2 लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड राइट साइड में सिंगल बॉन्ड सो इसको बोलते हैं मिथलीन यूनिट ओके मिथलीन यूनिट सो इफ यू सी यहाँ पे जैसे तुम नीचे जा रहे थे एक एक कार्बन एटम बढ़ा देते 1 2 3 4 वैसे एक एक मिथलीन का यूनिट भी बढ़ रहा था सिमिलरली ये अल्कोहल्स वाले में देखा था एल्किन्स में भी सेम था जैसे एक एक कार्बन एटम तुम बढ़ा रहे हो वैसे एक एक मिथलीन ग्रुप भी ऐड हो रहा है 0 से 1 1 से 2 2 से 3 सो ऑलवेज एज यू मूव in the increasing order in a homologous series in the increasing order of carbon atoms every time one methylene group is added okay or one methylene unit is added or is sub this is true for every homologous series okay so that's your first observation second observation therefore while going in an increasing order of the length there is a rise in the molecular mass of the members by 14 units okay so if you see okay give me a minute yeah if you see जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इंक्रीजिंग तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ते जाएगा क्योंकि और एटम्स ऐड होते जा रहे हैं कितना ऐड होगा हमेशा 14 यूनिट्स ऐड होगा व्हाई 14 यूनिट्स कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सॉरी कार्बन का मास कितना है कार्बन का मास इज 12 व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1 सो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन सो 12 plus 2 will be 14 what is u is the unit of u is the symbol for एटॉमिक मास यूनिट सो एटम्स के मास हम किस में मेजर करते हैं किस यूनिट में AMU में एटॉमिक मास यूनिट ओके सो 14 एटॉमिक मास यूनिट से हमेशा बढ़ता है क्यों हमेशा 14 एटॉमिक मास यूनिट से बढ़ेगा कि एक मिथलीन यूनिट ऐड हो रहा है बिकॉज वन मिथलीन ग्रुप इज बीइंग एडेड तो यानी C का 12 और H का 2 सो 12 plus 2 हमेशा 14 AMU से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने वाला है एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ होमोलॉगस सीरीज दैट्स योर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 Observation number 3 gradation in boiling points so let us look at two examples if you see यहाँ पे इसका boiling point दिया था 63 degree Celsius then 78 degree Celsius 97 degree Celsius and 118 degree Celsius तो slowly gradually it is increasing okay gradation यानी धीरे धीरे increase होना similarly for alkenes पहले negative 102 फिर नेगेटिव 48 नेगेटिव 6.5 देन पॉजिटिव 30 सो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट ओके ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेडेशन ओके ग्रेडेशन यानी इंक्रीजिंग स्लोली इन स्मॉल स्टेप्स दैट इज नोन एज ग्रेडेशन तो बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेडेशन है दैट्स योर ऑब्जर्वेशन नंबर 3 फ्रॉम द टेबल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज फाइनली generally it is found that while going in an increasing order in any homologous series the physical properties show variation in one direction physical properties boiling point एक physical property है right boiling point is a physical property so कोई भी physical property होगा धीरे धीरे वो change होते रहेगा okay next so showing variation in one direction is called as gradation and ये सारे physical properties में अप्लाई होता है और सारे homologous सीरीज में अप्लाई होता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए था वैसे दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी अप्लाई होगा ओके सो फाइनली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलॉगस सीरीज को लिख के उसके टेबल बना के हमें क्या क्या पता चला द फर्स्ट पॉइंट वन मिथलीन यूनिट गेट्स एडेड एवरी टाइम ये हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 14 atomic mass units every time you go down in a homologous series नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज 1 by 1 वो हमने थर्ड कॉलम में देखा था कार्बन एटम हमेशा एक एक इंक्रीज होता है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलैरिटी सो फॉर एग्जांपल इन सारे
मॉलिक्यूल्स का, ओके, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर. सिमिलरली मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा. क्यों? क्योंकि सब में OH है, राइट? अगर तुम लोग ने 10 पिज्जा बना लिया, सारे 10 पिज्जा पे चिकन डाल दिया, तो सारे चिकन के जो पिज्जा होंगे सब थोड़ा सेम टेस्ट करने वाले हैं, राइट? सो दैट्स द सेम थिंग विच इज हैपनिंग है. सब में OH है, सब में अल्कोहल ऐड किया, अल्कोहल इज OH, राइट? फंक्शनल ग्रुप OH इज कॉल्ड एज अल्कोहल. तो सब में अल्कोहल ऐड किया, सब में OH ऐड किया, तो सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे. जस्ट लाइक पिज्जा, अगर सेम टॉपिंग 4-5 अलग अलग पिज्जा पे डालोगे, सब लोग थोड़ा सिमिलर टेस्ट करने वाले हैं. ओके, दैट्स योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे सारे मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज के. फाइनली all members of homologous series can be represented by the same general molecular formula. This we haven't seen. Okay, तो अगर यहाँ पे देखो C2 है, so H4 हो गया डबल. C3 है तो H6 हो गया डबल. डबल ऑफ 3 6. C4 है तो H डबल, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो C5 है तो H 10. सो सेम तुम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हो, राइट? CnH2n, क्योंकि हमेशा जो कुछ भी कार्बन एटम्स होता है उसका डबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. सो ये हम लोग ने देखा था मॉलिक्यूलर द फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स, CnH2n. सो कोई भी होमोलॉगस सीरीज होगा, तुम उसको एक फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हो सारे मेंबर्स को. ओके, सिमिलरली इफ यू ट्राई टू मेक फॉर्मूला फॉर दिस, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. ओके, यहाँ पे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फॉर्मूला विल बी CnH2n, क्योंकि H2n प्लस 2, यहाँ पे 2 है, 2 का डबल करो 4 प्लस 2 6 आ जाएगा. 3 का डबल 6 प्लस 2 8 आ जाएगा. 4 का डबल 8, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा. तो CnH2n प्लस 2, एंड O हमेशा 1 होता है. सो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर all the members of homologous series of alcohols. So that's your third characteristic of a homologous series, की एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सबको डिनोट कर पाओगे तुम लोग. ओके, नेक्स्ट they have given a use your brain power type of question. So let me first discuss the second question. Second question is very easy. Okay, वैसे एक लाइन का आंसर है. जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स इज CnH2n plus 2. ये हम लोग को ऑलरेडी पता था. राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 8th and 12th member. सो 8th member पूछे तो n के यहाँ पे 8 डाल दोगे, तो C8H, 2 8 जा 16 and plus 2 is 18, तो C8H18. C8H18 should be your answer for the 8th member of this homologous series. 12 के लिए N12 डाल दो, so C12H, 12 2 is 24 plus 2 is 6, plus 2 is 26, right? So C12H26, ये 12th member का molecular formula होगा. So second question was very easy. ये हम लोग ने already देख के रखा था कि formula क्या होता है alkanes का. The first question is not that easy, and you will have to do a lot of hard work for that. Okay, so write down the structural formula for the first 4 members of various homologous series formed by making use of functional groups in table 9.16. What is table 9.16? Table 9.16 is this. Okay, ignore this circle for now. ये जो red circle है इसको ignore कर दो. So ये table 9.16 है in your textbook. Okay, तो इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है सबके होमोलॉगस सीरीज बनाने हैं. ओके, आई रिपीट, यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है सबके अलग अलग होमोलॉगस सीरीज बनाने और उस सीरीज के पहले 4 मेंबर्स के नाम लिखने हैं. ओके, उसके मॉलिक्यूल्स बनाने हैं. सो देयर हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 होमोलॉगस सीरीज और सबके होमोलॉगस सीरीज के पहले 4 मेंबर्स हमें लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू ऑल how to make a homologous series of the first functional group, which is halogen. Okay, और halogen का homologous series बनाते समय I'm going to use chlorine. You can use chlorine, bromine, iodine, all of them are exactly the same, but I'm going to use chlorine. तो कैसे करेंगे? This will be the answer to the first one. Okay, तो पहले मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ले लिया. मैंने क्या बोला था? ये तुम लोग का बेस है. पिज्जा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस, सॉस एंड चीज. तो ये तुम लोग का बेस, सॉस एंड चीज. अभी यहाँ से तुम लोग फ्लेवर ऐड करना शुरू कर दोगे. तो अगर इस हाइड्रोजन एटम को निकाल के तुम लोग ने Cl डाल दिया, सो तुम लोग का हाइड्रोजन होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर हो गया. वापस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, एक Cl ऐड कर दो, सेकेंड मेंबर. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दो, थर्ड मेंबर. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्लोरीन ऐड कर दो, फोर्थ मेंबर. यू डोंट हैव टू राइट द नेम्स, यू ओनली हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसके लिए क्या पता होना चाहिए? किसके साथ बिगिन करना है, किसके साथ स्टार्ट करना है?
that you all should know. Okay, if you know that you have to begin with this, then it becomes very easy to write this. Okay, so first halogen wala homologous series हम लोग ने लिख दिया. The reason I haven't asked you all to either copy this or do not copy is what I wanted to do is इसको मत लिखो. Okay, ये जो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इसको मत लिखो, सिर्फ टेबल कॉपी कर लेना. Okay, so only copy this table. So first done, first one we are done. Okay, halogen हो गया. Next अभी alcohol. Alcohol के लिए क्या होता है? OH add करना होता है. So again we'll start adding OH. I start with methane, ethane, propane and butane. एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दो, उसमें OH डाल दो. फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज. H निकाल दो, OH ऐड कर दो. सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. यहाँ पे प्रोपेन से एक H निकाल दो और एक OH ऐड कर दो. थर्ड मेंबर ऑफ homologous series of alcohols. And finally butane के लिए भी तुम सेम करोगे. Okay, so I have done two for you all. The third one, aldehyde, this do it for yourself, by yourself. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds. You pause the video and write the first 4 members of aldehyde functional group homologous. Sorry, the first 4 members of the homologous series of aldehyde functional group. Okay, I'll wait for 5 seconds. ओके, आई होप यू हैव ट्राइड बाय योरसेल्फ. अगेन रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर तुम लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू मास्टर इट एंड यू वोंट बी एबल टू फाइंड द मिस्टेक्स इन योर ड्राइंग. ओके, so make sure you are drawing it first and then checking with how I am discussing. There will be some cancellation, but the more cancellations you make, the more untidy your book is, the better your understanding, the more cleanly concept will be registered in your mind. Okay, and that's more important. So aldehyde में क्या होता है? CHO, C right side में H, ऊपर O आ जाना चाहिए. Okay, aldehyde. So here you won't start with methane. यहाँ पे बहुत लोगों ने मिस्टेक हो. You need not start with methane. You can start with hydrogen. एक हाइड्रोजन ले लो और उसमें CHO ऐड कर दो, तुम्हें फर्स्ट मेंबर मिल जाएगा. फिर तुम्हारा मीथेन आएगा. मीथेन में यहाँ पे H निकाल के CHO ऐड कर दो, सेकेंड मेंबर ऑफ दी होमोलॉगस सीरीज. इथेन ले लो, इथेन में H निकाल के CHO डाल दो, थर्ड मेंबर. प्रोपेन ले लो, प्रोपेन में से H निकाल के CHO ऐड कर दो, फोर्थ मेंबर. सो व्हाट वाज डिफरेंट हियर? यहाँ पे तुम लोग H के साथ भी स्टार्ट कर सकते थे, सिर्फ हाइड्रोजन एटम ले लो और उसमें CHO ऐड कर दो. CHO में कार्बन है बराबर, उसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, तो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ स्टार्ट कर सकते हो. पिछले वाले में OH था, राइट? तो अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया मैंने, हाइड्रोजन प्लस OH, तो H2O बन जाएगा, कार्बन कंपाउंड बनेगा ही नहीं, राइट? और होमोलॉगस सीरीज कार्बन कंपाउंड्स का होता है. तो यहाँ पे एल्डिहाइड वाले में तुम लोग हाइड्रोजन एटम से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, सो दैट इज योर आंसर टू एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वील डू कीटोन. अगेन कीटोन, you all try it by yourself. What you need to remember is यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है. तो जो कीटोन है इसको बीच में डालना पड़ेगा. ओके, तो फिगर इट आउट. अभी तुम बीच में कैसे डालोगे? दो कार्बन एटम्स के बीच में डालना पड़ेगा कीटोन को. ओके, सो अगेन आई वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू कंप्लीट इट by yourself, try it by yourself, and then we can discuss the correct ones. Okay, so waiting 5 seconds for you to pause the video and complete ketone का homologous series. Okay, I hope you were able to complete ketone का homologous series. Let us see the answer. Okay, यहाँ पे क्या अलग था? यहाँ पे कार्बन के लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसको बीच में डालना पड़ेगा. एक कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को निकाल के उसको नहीं डाल पाओगे. ओके, सो हियर यू विल हैव टू स्टार्ट विद ईथेन. क्यों ईथेन से स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि बीच में डालना है, राइट? बीच में डालने के लिए पहले दो कार्बन एटम तो होने चाहिए. ओनली व्हेन देयर आर टू कार्बन एटम्स इन बिटवीन, उसके बीच में तुम कुछ डाल पाओगे, राइट? उसके बीच में कीटोन डालना है. So you'll start with ethane. For ethane के बीच में तुम CO डाल दो. So that is your first member of homologous series of ketone. Secondly, यहाँ पे प्रोपेन स्टार्ट कर दो. अभी इथेन आ गया, इथेन के बाद इथेन में दो कार्बन एटम्स, फिर 3, 4, 5 ले लो एंड बीच बीच में CO डालते रहो. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में CO डाल दिया है, राइट? फिर बाद में हमेशा राइट साइड के दो कार्बन एटम्स के बीच में CO डाला है. ओके, सो दैट इट्स इजी टू सी द पैटर्न. सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में CO डाल दिया है, नेक्स्ट इन दोनों के बीच में CO डाल दिया, नेक्स्ट लास्टली इन दोनों के बीच में दे हैव पुट CO एज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज कीटोन. सो यहाँ पे क्या लगता है? हियर यू हैव टू स्टार्ट विद ईथेन. क्यों ईथेन के साथ स्टार्ट करना है? बिकॉज यू हैव टू पुट कीटोन बिटवीन टू कार्बन एटम्स. दैट्स व्हाई यू फर्स्ट नीड टू हैव टू कार्बन एटम्स इन योर मॉलिक्यूल. सो यू स्टार्ट विद ईथेन फर्स्ट. ओके, अगेन
ये सब कॉपी मत करो, सिर्फ ओनली कॉपी द टेबल. ओके. नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रीटी सिंपल. ओके, COH एंड ऊपर एक O. सो ये तुम्हें ऐड करना है हाइड्रोजन एटम निकाल के. सो ट्राई टू डू दिस. आई वेट फॉर 5 seconds. Okay, I hope you were able to complete this. Now let us see the answers. Okay, again you could start with hydrogen atom क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बन है, राइट? ऑलरेडी एक कार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हो. सो हाइड्रोजन से भी स्टार्ट, यू टेक वन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे COH एंड ऊपर एक O, तो इसको COOH बोलते हैं. ओके, तो COOH यहाँ पे ऐड कर दिया. सो दिस योर फर्स्ट मेंबर. फिर बाद में मीथेन ले लिया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के COOH ऐड कर दिया, सेकेंड मेंबर. यहाँ पे इथेन ले लिया, एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे COOH ऐड कर दिया, थर्ड मेंबर. एंड सिमिलरली द लास्ट मेंबर. ओके. नेक्स्ट, ईथर. ईथर के लिए अगेन सी, लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड. सो उसको किसी के तो बीच में डालना पड़ेगा. सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू draw the homologous series of ether by yourself. Okay, again waiting for 5 seconds. Okay, I hope you pause the video and have your ethers homologous series ready. Let us see. Again यहाँ पे तुम्हें बीच में डालना है ऑक्सीजन को. So you will start with 2 कार्बन एटम्स. पहले से तुम्हारे पास 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए. So you start with ethene. So इन दोनों के बीच में कार्बन एटम डाल दिया. सिमिलरली इन दोनों के बीच में एक, नॉट कार्बन, ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन एटम डाल दिया. सिमिलरली यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दिया. सो दीज आर योर फर्स्ट 4 members of the homologous series of ether. Okay, self oxygen is ether. Again I'm telling you all these 2 columns you have to by heart. Learning session खत्म होने से पहले अभी के अभी by heart कर लो, or else understanding the further learning sessions will be difficult. So ether हमें पता चल गया, उसका homologous series देख लिया. Next, ester. Okay, ether ये है ester. ester में क्या अलग है देखो. कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर काफी सिमिलर है, बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के एंड में एक H था, हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन गायब है. तो अगेन यू नीड टू हैव, इसको तुम्हें बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो किसी के तो बीच में डालना पड़ेगा इसको भी. सो दिस इज योर एस्टर. ओके, ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एस्टर. आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू पॉज द वीडियो. Okay, I hope you were able to write or draw the first 4 members of ester homologous series. Let us see the answer. Okay, now you can begin with methane. Okay, so here is your methane, and now they have added it. Where have they added? यहाँ पे if you see, यहाँ पे राइट साइड में भी एक हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, राइट? लेफ्ट साइड में जनरली एक कार्बन ऐड होगा, राइट साइड में एक हाइड्रोजन ऐड होगा. सो इफ दिस इज योर मीथेन, सो यहाँ पे यू कैन सी CH3, राइट? और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो लोग ने COO डाला है. सी, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में वो लोग ने COO डाला है. अगर तुम इस COO को निकाल दोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, तो ये मीथेन बन जाएगा. तो क्या नया ऐड किया है? CHO यहाँ पे ऐड किया. तो अभी हमेशा सो हियर दे हैव एडेड CH on the left hand side. You can add it on the right hand side as well as left hand side. Both of them will mean the same. Next, इथेन ले लो. भी इथेन के तुम लोग को कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में ऐड करना है. ओके, सो यहाँ पे आई कैन सी दे हैव एडेड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. तो इन दोनों के कार्बन एटम्स के बीच में ऐड किया. सी, यहाँ पे CH3 लेफ्ट साइड और यहाँ पे CH3 राइट साइड. यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में CH3, यहाँ पे राइट साइड में CH3. तो कार्बन एटम्स के बीच में CHO ऐड किया. नेक्स्ट, here they have added between these 2 carbon atoms. इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में CHO ऐड कर दिया. एंड फाइनली यहाँ पे ब्यूटेन में इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में COO ऐड किया. आई वाज सेइंग CHO, राइट? इट्स नॉट CHO, CO. वी आर डूइंग एस्टर. एस्टर में COO होता है. ओके, सॉरी इफ आई सेड CHO. सो हमेशा CHO, इथेन से वो लोग कार्बन एटम्स के बीच में ऐड कर रहे हैं, बट मीथेन में कार्बन एक ही एटम है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड किया. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 4 members of the homologous series of ester. Okay, so we are also done with ester. Last is remaining, which is remaining is amine. Okay, amine. So उसमें NH2 add करना. So again I'm going to wait for 5 seconds. NH2 is very simple to add. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to try to write this by yourself, and then we'll see the answer. Okay.
Okay, I hope you were able to write the first four members of amine homologous series. Okay, so you'll again begin with methane. So एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो और NH2 ऐड कर दो. That's your first member. वापस यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकाल के NH2 ऐड कर दो, सेकंड मेंबर. यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल दो, NH2 ऐड कर दो, थर्ड मेंबर. यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल दो, NH2 ऐड कर दो, फोर्थ मेंबर. So these are the first four members of functional group amines homologous series. Okay, so now do you understand मैं इसको पिज्जा और टॉपिंग्स क्यों बोल रहा था कि ये तुम लोग का बेस है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटेन. दीस आर योर बेसिक कार्बन कंपाउंड्स और इसमें अभी अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होने वाले हैं. ओके, दैट्स व्हाई नोइंग एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस वेरी वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर वो तब जब तक ठीक से नहीं आएगा तब तक फंक्शनल ग्रुप समझेगा नहीं, और अभी फंक्शनल ग्रुप ठीक से नहीं समझा तो आगे के 2-3 लर्निंग सेशन नहीं समझेंगे. सो मेक श्योर you're by hearting these tables which I tell you to by heart then and there, and write these. Don't copy all this again and again. Just put this in your notebook in this table. Okay, so that's it for this learning session. I know it could be a little overwhelming, a little more heavy for today's learning session, but it was important. Okay, I hope you've understood everything. Just check whether you have accomplished today's learning objective. Can you recall any, याद कर सकते हो क्या ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन एटम्स? ओके, फंक्शनल ग्रुप्स अगर मैं तुम्हें बोला अमाइन, अमाइन का क्या फंक्शनल ग्रुप है? इट इज NH2. वो तुम लोग बोल सकते हो क्या? सो वो जो फंक्शनल ग्रुप के जो दो बीच के कॉलम्स है वो बाय हार्ट हो जाने चाहिए बिफोर यू एंड दिस लर्निंग सेशन. कैन यू ड्रॉ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप? अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि एस्टर के पहले 4 मेंबर्स लिख दो उसके होमोलॉगस सीरीज के, तुम लोग लिख पाओगे क्या? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखना है, एक हाइड्रोजन एटम निकाल के दूसरा हाइड्रोजन एटम डाल देना. कभी कभी तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन एटम है, उसके अंदर अगर कार्बन एटम है तो तुम हाइड्रोजन से शुरुआत कर सकते हो, तो हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कर दोगे. कभी कभी कुछ एटम्स को बीच में डालना पड़ता है, अगर बीच में डालना पड़ रहा है तो तुम्हें इथेन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इथेन में ऑलरेडी 2 कार्बन एटम्स है जिसके बीच में कुछ डाल पाओगे. सो इथेन से स्टार्ट करोगे और फिर देन यू विल कीप मूविंग डाउन. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड टू राइट homologous series of different functional groups. Okay, so just check whether you have achieved today's learning objective or not. And that's it for this learning session. I hope you understood, and make sure you're by hearting the alkanes, alkenes, alkynes wala table. Make sure you're by hearting the functional group wala table. Only then you'll be able to understand the further learning sessions. Okay, great. Okay, that's it for this learning session. I hope you had fun. I hope you understood. We'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.